Then good morning to dear students. Today I will discuss about the simple numerical on the power plant economics. This is the part of the unit 5 and the subject name is the power plant engineering. This is the outline of the today lectures. What are the terms using in today lectures? Terms commonly used in the power plant economics: reserves, load curve, numerical problems on the power plant economics, tariff introduction and the types of tariffs. Terms which are commonly used in the power plant economics, that is a connected load, some of the continuous ratings of the entire load, consuming operators connected to the system, already discussed. Maximum demand, it means the maximum power that the circuit is likely to draw at any time, that is a demand factor, ratio of the maximum demand to the connected load, and has to be less than 1. This is the demand factor. Fourth is the diversity factor, ratio of the sum of the individual maximum demand to the maximum demand of the whole power system. सभी की कितनी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है और होल पावर सिस्टम की कितनी मैक्सिमम डिमांड है, उन दोनों का रेशियो होता है डाइवर्सिटी फैक्टर. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज की वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 लिखी आ रही है उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी. कोइंसिडेंस फैक्टर, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिमांड बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड. तो कितनी मैक्सिमम डिमांड है पूरे सिस्टम की और टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितनी है हर एक यूनिट की, दैट इज कॉल्ड द कोइंसिडेंस फैक्टर, और ये भी लेस देन 1 होता है. बात करेंगे लोड डाइवर्सिटी की, तो डिफाइंड मैथमेटिकली एज अ लोड डाइवर्सिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल लोड्स माइनस ऑफ द पीक ऑफ द कंबाइंड लोड, दैट इज कॉल्ड द लोड डाइवर्सिटी. Contributions factor, it is the contribution of a particular load in the per unit of the individual demand to the group maximum demand. Loss factor, ratio of the average power loss to the power loss at the peak load. पीक लोड कंडीशन में कितना पावर लॉस हुआ और एवरेज पावर लॉस कितना हुआ, इन दोनों का रेशियो होता है लॉस फैक्टर. लोड फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड, दैट इज कॉल्ड द लोड. Good morning, sir. And the load factor is equal to that is the ratio of the average demand to the maximum demand, and the load factor is also equal to the energy produced in a given time divided by the maximum demand multiplied by the hours of operation in a given period. Plant capacity factor, it is the ratio of the average annual load to the plant rated capacity. Plant capacity factor is equal to the energy produced in the 1 year divided by the plant rated capacity multiplied by the 8760. Plant use factor, it is defined as, that is the actual energy produced oblique the plant capacity multiplied by the plant operation time in hours, that is the plant use factor formula. Utilization factor, it is the ratio of the maximum load to the rated capacity. What are the reserves, कितने तरह के से रिजर्व रखे जाते हैं. पहला रिजर्व स्पिनिंग रिजर्व रहता है जो कि जनरेटिंग कैपेसिटी पे डिपेंडेंट रहता है. दूसरा कोल्ड रिजर्व रहता है जो कि आपका सर्विस के दौरान अवेलेबल रहता है, नॉट इन ऑपरेशन. हॉट रिजर्व जो रहता है वो आपका जनरेटिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन ये ऑपरेशन में अवेलेबल रहता है, सर्विस में अवेलेबल नहीं रहता है. फर्म पावर, जो पावर जितनी भी इंटेंट की आ रही है वो हरदम जो रहती है इमरजेंसी कंडीशन के लिए यूज की जाती है. रिजर्व मार्जिन जो रहता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेटेड कैपेसिटी एंड द एक्चुअल लोडिंग ऑफ द जनरेटर, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व मार्जिन. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी आप देख रहे हैं ये यूज किए भी जाते हैं और नहीं भी किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के हिसाब से इनके वर्ड के मीनिंग इस्तेमाल होते हैं. तो अभी आप जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से इनका यूज होगा. लोड कर्व यदि देखेंगे तो लोड कर्व में बहुत सारी चीजें क्लियर होती है. जैसे ये लोड कर्व आप देख रहे हैं, तो दिस इज द लोड कर्व रिप्रेजेंटिंग द लोड इन द वाई ऑर्डिनेट्स एंड द टाइम इन द ओरिएंटल ऑर्डिनेट. तो ये जो आप देख रहे हैं कि सवेरे से लेके सपोज हम 6 बजे से बात करें तो 6 बजे से लेके जो पीक वैल्यू जा रही है या मैक्सिमम डिमांड जा रही है वो यहाँ पे जा रही है. मैक्सिमम डिमांड इधर पे है, मतलब आपको मान के चलिए कि यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी. ये टाइम कुछ भी हो सकता है, आपका दिन वाला टाइम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, और ये शाम वाला टाइम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द विंटर कंडीशन. विंटर कंडीशन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम डिमांड रहती है वो डे टाइम पे कम रहती है, क्योंकि फैन ट्यूब लाइट वगैरह आप लोग ऑन नहीं करते हैं, कूलर एसी वगैरह ऑन नहीं रहता है. और नाइट के टाइम पे वहीं वेयर एज कि थोड़ा सा लोड कम ही रहता है वहाँ पे,
बट समर के टाइम पे भी आप देखेंगे तो डे टाइम पे जो डिमांड रहती है वो ज़्यादा रहती है, नाइट टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाती है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटिंग द अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द monthly condition, according to the timely basis. So load curve representing on the between of the two, the load is representing on the y ordinate and the time is representing on the horizontal ordinate. Second thing is the energy produce, energy कितनी produce हो रही है, that is the area under the curve, कि उस कर्व के अंदर में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तीसरा लोड फैक्टर, द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द कर्व टू द टोटल एरिया अंडर द रेक्टेंगल इन विच इट इज कंटेन गिव्स द लोड फैक्टर फॉर द पीरियड। तो ये लोड फैक्टर कहलाता है कि कितना जो रेशियो है, या बोलना चाहिए एरिया अंडर द कर्व जो है वो कितना है, और टोटल एरिया कितना अंडर द रेक्टेंगल वो कितना है, उन दोनों का जो रेशियो रहता है वो लोड फैक्टर कहलाता है। एवरेज लोडिंग जो रहती है, द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स गिव्स द एवरेज डिमांड। एरिया जो है कर्व के अंदर में कितना है और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स जो रहते हैं वो आपकी एवरेज डिमांड कहलाएगी। ये आपके लोड ड्यूरेशन कर्व है, एनर्जी लोड कर्व है। तो लोड ड्यूरेशन कर्व जो है इस तरीके से दिखाया गया है। ऑल द लोड्स आर द रीअरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप जो लोड देखना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो लोड आपका वर्टिकल में है और टाइमिंग जो है ओरिएंटल उसमें है। एनर्जी लोड कर्व की यदि बात करेंगे तो एनर्जी लोड कर्व आपका इस तरीके से मैनर में है, जो कि आपका कम्युलेटिव इंटीग्रेशन रहता है लोड कर्व का, स्टार्टिंग एट द जीरो लोड टू ए पर्टिकुलर लोड, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व एज पर द रिक्वायरमेंट। इसको हम प्लॉट करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द टुडे लेक्चर। दिस इज द प्रॉब्लम, कैन यू नोट डाउन? A residential consumer has a connected load of a 6 lamp, each of a 100 watt and a 4 fans of the 60 watt at his premises. His demand as follows from midnight to 5 am. अब आपको ध्यान रखना है midnight 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक में जो डिमांडिंग है वो है 120 वाट की। और फिर 5 बजे सवेरे से लेकर 6 बजे तक नो लोड, वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में 380 वाट की जरूरत है। बोलना चाहिए आपका 6 PM टू 7 PM इवनिंग टाइम पे 380 वाट की रिक्वायरमेंट है। फ्रॉम 7 PM टू 9 PM 680 वाट की रिक्वायरमेंट है। फ्रॉम 9 PM टू मिडनाइट 420 वाट की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से आप कर्व प्लॉट कर सकते हैं कि रात के 12 बजे से लेके अगली रात के 12 बजे तक में, तो 24 घंटे के बीच में लोड कर्व आपको ड्रॉ करना है, किसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो लोड कर्व ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दिस इज द लोड कर्व, जहाँ के लोड को वर्टिकल वाई एक्सेस में दिखाया गया है और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे दिखाया गया है। तो फर्स्ट इज द प्लॉट द लोड कर्व, जैसा कि दिखाया कि आप प्लॉट कर लेंगे। सेकंड इज द फाइंड द एनर्जी कंजम्पशन इन द 24 आवर्स। एनर्जी कंजम्पशन कितनी हुई 24 आवर्स में, तो इसके लिए एरिया अंडर द कर्व। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो फ्रॉम मिडनाइट टू 5 AM, तो 5 घंटे में 120 वाट की, तो 5 × 120 कर दिया, प्लस 380 ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 380 6 PM टू 7 PM 1 आवर का गैप था, तो 380 × 1 कर दिया, प्लस 680 × 2 यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर 420 × 3 यहाँ पे जो है आपका 3 घंटे से 9 बजे से लेके 12 बजे तक रात में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो ये आपकी जो एनर्जी रहती है ये वाट में है और टाइम जो आवर के बेस में है। तो जो यूनिट बनेगी वाट आवर बनेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3600 वाट आवर आ गया। ये एनर्जी कंजम्पशन है 24 आवर्स में कितनी हो रही है। फिर बोल रहा है आपको डिमांड फैक्टर भी निकालना है, एवरेज लोड भी निकालना है और मैक्सिमम लोड भी निकालना है, लोड फैक्टर भी निकालना है। तो इन सबके लिए हमने फार्मूले बताए आपको। तो जो मैक्सिमम लोड रहता है वो 680 वाट है। आप पूरे उसमें भी आप देखेंगे तो 120 वाट ये है, 380 ये है, 680 ये है, 420 ये, तो 680 वाट जो है वो मैक्सिमम लोड कहलाएगा। फिर आपका डिमांड फैक्टर जो है इसके लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। तो जो मैक्सिमम डिमांड है वो 680 का है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, और जो कनेक्टेड लोड है वो यहाँ पे आपका 6 × 100 + 4 × 60। तो कनेक्टेड लोड का मतलब ये होता है कि आपका ये जो आप देख रहे हैं कनेक्टेड लोड ये दिया हुआ है, आपके 6 लैंप जल रहे हैं 100 वाट के, तो 6 × 100 कर दिया, और 4 फैन जो चल रहे हैं वो 60 वाट के, तो 4 × 60 कर दिया। तो यहाँ पे आपके कनेक्टेड लोड आ गया। तो डिमांड फैक्टर के लिए फार्मूला है मैक्सिमम डिमांड 680 अपॉन कनेक्टेड लोड के लिए फार्मूला ये है। तो डिमांड आपका फैक्टर निकल के आ जाएगा
ये आपका निकल कर आ रहा है 0.809, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द एवरेज लोड जो कि आपको चाहिए है, एवरेज लोड जो रहती है जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी कंज्यूम 3600 वाट आवर हुई है और एक दिन में जो होते हैं आपके 24 घंटे होते हैं, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो आवर से आवर कैंसिल आएगा, तो ये एवरेज लोड आएगा 150 वाट का। तो आपका एवरेज लोड आ गया 150 वाट का। फिर आपके पास मैक्सिमम लोड जो था वो यहाँ पे आपके पास 680 वाट का आ गया। डिमांड फैक्टर आपने निकाल लिया जो आपको चाहिए था। अब बात करते हैं लोड फैक्टर की। तो लोड फैक्टर के लिए फार्मूला रहता है एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड। तो एवरेज लोड आपके पास था 150 वाट और मैक्सिमम जो लोड है वो है 680, तो इससे आप निकाल सकते हैं लोड फैक्टर। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द लोड फैक्टर 0.22। तो ये आपके पास टोटल जो वैल्यूज है निकल के आ गई जो भी आपकी रिक्वायर्ड थी। तो दिस वाज द सेकंड फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल कि एक जनरेटिंग स्टेशन कैपेसिटी का है जो कि मैक्सिमम डिमांड जिसकी 80 मेगावाट की है। ये आप जो देख रहे हैं इसकी डिमांड आपकी 80 मेगावाट की है। लोड फैक्टर आपका 65% है और प्लांट कैपेसिटी जो है 40% है। प्लांट यूज फैक्टर 85% है। आपको क्या निकालना है, ये डेली एनर्जी प्रोड्यूस, ये आपको निकालना है डेली एनर्जी प्रोड्यूस। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो पहला आपको निकालना था डेली एनर्जी प्रोड्यूस, दूसरा निकालना है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तीसरा निकालना है मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस, चौथा निकालना है द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस डेली इफ द प्लांट वाज रनिंग एज अ पर द ऑपरेटिंग शेड्यूल और इफ द प्लांट वाज रनिंग ऑल द टाइम। एवरेज डिमांड जो है जो निकल के आ रही है वो है लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम डिमांड। ये फार्मूला होता है एवरेज डिमांड का। तो 0.65 मल्टीप्लाइड बाय द 80, जो आपका जो देख रहे हैं फार्मूला, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से अपन चल रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड दी 80 मेगावाट की और लोड फैक्टर दी 65, तो एवरेज डिमांड आपकी निकल के आ जाएगी। तो जो एवरेज डिमांड निकल के आ रही है जो कि लोड फैक्टर आपका 65% था, तो 0.65 मल्टीप्लाइड बाई द मैक्सिमम डिमांड 80 मेगावाट कर दिया, तो आपने 52 मेगावाट आ गई आपकी। फिर डेली एनर्जी प्रोड्यूस की बात करेंगे तो 52 मल्टीप्लाइड बाई द 24 आपने कर दिया, क्योंकि अब आपके पास 52 ये मेगावाट एवरेज डिमांड है, इंटू 24 कर दिया तो डेली की जो नीड रहेगी वो निकल के आ जाएगी। ये मेगावाट में है तो मेगावाट आवर हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे तो एवरेज डिमांड कितनी है टू द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इन दोनों का रेशियो रहता है इंस्टॉल कैपेसिटी या रिजर्व कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी अपने पास दी हुई है, ये आपकी दी है 40% और एवरेज डिमांड आपके पास यहाँ पे दी हुई है 52 मेगावाट निकल के आई है। तो इससे आप देखेंगे तो 52 मेगावाट अपॉन 0.4 प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इससे आपका 130 मेगावाट आ जाएगा इंस्टॉल कैपेसिटी या रिजर्व कैपेसिटी। और रिजर्व कैपेसिटी की बात करेंगे तो दैट इज द इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस ऑफ द मैक्सिमम डिमांड। तो यदि मैक्सिमम डिमांड को माइनस करेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी में से तो रिजर्व कैपेसिटी निकल के आएगी। तो रिजर्व कैपेसिटी है 130 मेगावाट और जो मैक्सिमम डिमांड है आपके पास वो आपकी 80 मेगावाट की, जो कि ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई 80 मेगावाट, तो उससे आप करेंगे तो 50 मेगावाट आ जाएगा। फिर मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस डेली इफ इट वाज रनिंग ऑल द टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 24। यदि करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी आपकी आ जाएगी, यदि प्लांट को आपको ऑल टाइम पे रन करना है तो 130 मल्टीप्लाइड बाय 24 दैट इज द 3120 मेगावाट आवर। और मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस डेली इफ द प्लांट वाज रनिंग एज पर द ऑपरेटिंग शेड्यूल, दैट इज इक्वल टू द डेली एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट यूज फैक्टर। इससे आपके पास आ जाएगा 1248 आपके पास डेली एनर्जी प्रोड्यूस थी और डिवाइड बाय 0.85 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम एनर्जी जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर द ऑपरेटिंग शेड्यूल। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिमांड जनरेटिंग स्टेशन की 100 मेगावाट है, लोड फैक्टर दिया है, प्लांट कैपेसिटी दिया है, प्लांट फैक्टर दिया है। तो आपको निकालना क्या है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 पे निकाला था वैसे ही निकालना है द डेली एनर्जी प्रोड्यूस, द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, तीसरा रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, चौथा आपका है द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस इफ द प्लांट इज रनिंग ऑल द टाइम, पांचवा है
the maximum energy that could be produced daily at the full load according to the operating schedule. यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो इसमें यहाँ पे एक नई जो चीज दिख रही है यूटिलाइजेशन फैक्टर है, बाकी वही है जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 2 में आपने किया था। एवरेज लोड का फार्मूला लगा के आप एवरेज डिमांड निकाल लेंगे, देन इंस्टॉल कैपेसिटी निकाल लेंगे। इंस्टॉल कैपेसिटी निकालने के बाद आप बोलना चाहिए यहाँ पे जितनी भी आएगी इंस्टॉल कैपेसिटी उससे रिजर्व कैपेसिटी निकाल लेंगे, या आपकी रिजर्व कैपेसिटी निकल के आ रही है। मैक्सिमम एनर्जी जैसा कि पिछली प्रॉब्लम बताया था वैसे यहाँ पे भी करना है, जितनी भी आपकी डेली एनर्जी की नीड रहती है, इंस्टॉल कैपेसिटी रहती है, उसको 24 आवर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, जो कि हम रनिंग कंडीशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे तो उसका लिए फार्मूला यहाँ पे ये रहता है, तो डेली एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय द प्लांट यूज फैक्टर, तो 1560 जो थी डेली एनर्जी प्रोड्यूस है, और प्लांट यूज फैक्टर आपके पास 85% दिया तो 0.85 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 1950 मेगावाट आवर आ रहा है। एंड द यूटिलाइजेशन फैक्टर जो यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय द रेटेड कैपेसिटी 100 डिवाइड बाय द 130 दैट इज द 0.769, ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर है। फिर फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम कि लोड दिया है किसी सब स्टेशन का, इस तरीके से दिया लोड, टाइम के हिसाब से दिया है कि 12 बजे आपके रात में, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, इस तरीके से आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली जा रहा है। तो एज पर द टाइम शेड्यूल रात के 11 बजे तक जो आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट की जो डिमांडिंग है ये इस तरीके से है। दिन के टाइम पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं रहती तो जीरो लोड है। डोमेस्टिक यदि बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द एज पर द वेदर कंडीशन, यदि गर्मी है तो हो सकता है उस हिसाब से ज़्यादा आपको फैन या कूलर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, दिन में भी रहती है, यदि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है उसके हिसाब से है। यहाँ पे योग्य डोमेस्टिक कमर्शियल के हिसाब से, क्योंकि मशीनें वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन कंपनी के लिए, तो मशीनों का इस्तेमाल जो प्रोडक्शन करने के लिए करना है उसके हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट जो चेंज होती रहती है। टोटल यदि बात करेंगे तो 600 400 प्लस 400 1400 हो जाएगा कि रात के 12 बजे इतनी जरूरत पड़ रही है, फिर 1 बजे 500 400 और 400 की जरूरत पड़ रही है, तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी रिक्वायरमेंट 1300। फिर 2 बजे रात कितने देखेंगे तो 1250, और 11 बजे फिर रात में देखेंगे तो 400 700 400। तो आपको जो मैक्सिमम डिमांड मिलेगी, मैक्सिमम डिमांड यदि आप इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम डिमांड अभी मुझे जो दिखाई दे रही है यहाँ पे ये है आपकी 1950 की करीबन, और उससे भी ज्यादा यदि आप जाएंगे तो 2100 आपको यहाँ पे दिख रही है, और ज्यादा दिख रही हो तो देख सकते हैं अपन इसमें 2100 जो है मैक्सिमम डिमांड है अपनी। तो 2100 मैक्सिमम डिमांड में अपन देख सकते हैं। इसमें निकालने क्या पैरामीटर है वो देख लेते हैं। पहला जो पैरामीटर है इसमें मैक्सिमम डिमांड का ही है, मैक्सिमम डिमांड आपको निकालना, तो वो 2100 किलोवाट आ गई जो आपकी अपन डिस्कस कर रहे थे। द क्लास कंट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग एंड द रिमेनिंग लोड, तो क्लास कंट्रीब्यूशन फैक्टर ये हो जाएगा, तो क्लास कंट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएगा लोड ऑफ द क्लास एट अ पीक लोड अपॉन द मैक्सिमम लोड ऑफ द क्लास, तो 400 डिवाइड बाय द 400, पीक लोड पे 400 की जरूरत थी पीक लोड पे, और मैक्सिमम लोड जो जा रहा था क्लास का वो 400 जा रहा था, दैट इज द 1। इस तरीके से आप बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, सम ऑफ द मैक्सिमम डिमांड्स फॉर द ईच क्लास अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड जो जा रही थी वो ईच क्लास के लिए 400 1200 1300 जा रही थी। जैसे स्ट्रीट लाइटिंग की देखेंगे तो 400 थी, और 1200 इसकी थी आपकी डोमेस्टिक के लिए, 1300 आपकी थी कमर्शियल के लिए, डिवाइड बाई 2100 टोटल आपकी जो मैक्सिमम डिमांड थी वो थी। कोइंसिडेंस फैक्टर देखेंगे तो 1 अपॉन डाइवर्सिटी फैक्टर, दैट इज द रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ द डाइवर्सिटी फैक्टर, कोइंसिडेंस फैक्टर रहता है। पावर लॉस एट द पीक लोड, इसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं एवरेज पावर लॉस अपॉन द लॉस फैक्टर, ये लगाएंगे तो आपका पावर लॉस निकलेगा पीक लोड पे। टोटल एनुअल लॉस जो है एवरेज लॉस मल्टीप्लाइड बाय 365 करेंगे तो ये आपके पास टोटल एनुअल लॉस आ जाएगा। डिमांड फैक्टर की बात करेंगे तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय द कनेक्टेड लोड करेंगे तो आपके पास डिमांड फैक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से ये एक फिफ्थ नंबर का न्यूमेरिकल है जो कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर का है। 10 लैंप लगे हैं 100 वाट के, जिसकी डिमांड दी हुई है इस प्रकार से। तो कनेक्टेड लोड एक प्रकार से आपका 10 into 100 हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम बेसिस डिमांड जो है दी हुई है। तो फ्रॉम मिडनाइट 5 AM 100 watt, from 5 AM to 6 PM no load, from 6 PM to 7 PM 800 watt, from 7 PM to 9 PM 900 watt, 9 PM to midnight 400 watt,
तो लोड कर्व को प्लॉट कर सकते हैं इसके हिसाब से, जैसा कि पहले न्यूमेरिकल में बताया था। एनर्जी कंज्यूम भी आप निकाल सकते हैं पहले न्यूमेरिकल के हिसाब से, डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड, मैक्सिमम लोड एंड द लोड फैक्टर, ये हमने आपको बताया था तरीका। तो दिस इज द सेकंड पार्ट, एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है ये हम निकाल लेंगे। एनर्जी कंज्यूम के लिए आपके पास फार्मूला रहता है कि 100 इंटू 5, 5 घंटे में मिड नाइट से उधर पे आ रहे हैं, फिर आपका इधर पे 1 इंटू 800 प्लस 2 इंटू 900 प्लस 3 इंटू 9 टू 12 pm, ये आपका 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4300 वाट आवर आ रही है। डिमांड फैक्टर के लिए फार्मूला मैक्सिमम लोड अपॉन द कनेक्टेड लोड है, ये आपका फार्मूला लग जाएगा। एवरेज लोड के लिए भी फार्मूला है, लोड फैक्टर के लिए फार्मूला है। अब टैरिफ की बात करते हैं कि टैरिफ क्या कहलाता है। तो टैरिफ एक ऐसी चीज है कि टैरिफ डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है। जब तक कॉस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तो हम टैरिफ नहीं बता सकते कितने टैरिफ की इलेक्ट्रिसिटी पे हमें सप्लाई करना है। तो फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन। There are the two types of the charges, fixed charge and the running charges. फिक्स चार्ज जो रहते हैं इंक्लूड द इंटरेस्ट एंड द डिप्रिसिएशन रहता है, कॉस्ट ऑफ प्लांट रहती है, बिल्डिंग रहता है, ट्रांसमिशन रहता है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहता है, पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द स्टाफ रहता है, ये फिक्स चार्जेस के रूप में रहते हैं। कॉस्ट ऑफ मीटर रहता है, द बिलिंग कलेक्शन रहता है, सर्विस रहता है, जैसे जो रीडिंग वगैरह लेने के लिए आते हैं वो फिक्स चार्जेस में ही आते हैं। रनिंग चार्जेस की बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन, फ्यूल कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस, ये सब आपके रनिंग चार्जेस में है। जनरल फॉर्म ऑफ द टैरिफ जो रहते हैं ये इस फॉर्म में रहते हैं, ए के डब्ल्यू एच या बी के डब्ल्यू प्लस सी। तो ए, बी एंड द सी आर द कांस्टेंट, इसके हिसाब से हम टैरिफ को जो है डिसाइड करते हैं। तो कुछ इस तरह के टैरिफ्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, फ्लैट रेट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ एंड द मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर फैक्टर टैरिफ में 3 तरह के आप देख रहे हैं, किलोवाट एम्पियर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, किलोवाट आवर एंड द किलोवाट एम्पियर टैरिफ एंड द स्लाइडिंग और द एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। तो कई बार क्या होता है कि लाइट की इतनी फिक्स कर दी जाती है कि इतना कंजम्पशन करेंगे तो आपको इतना टैरिफ देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टू पार्ट टैरिफ में आपके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं जहाँ की आपका मैक्सिमम डिमांड भी शामिल रहती है। कि कई बार क्या होती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके हिसाब से फिर हमें टैरिफ रेट डिसाइड करने पड़ते हैं। ब्लॉक रेट टैरिफ में कई तरीके से टैरिफ को ब्लॉक कर दिया था कि 50 यूनिट यदि आप यूज करेंगे तो इतने बिजली का पैसा लगेगा, 1.585 एक एग्जाम्पल दिया गया है, पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। उसके ऊपर यदि आप जलाते हैं तो 2.90 पर यूनिट आपका टैरिफ लगेगा। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में जनरली ये होता है कि आप जितनी डिमांड बढ़ती चली आएगी उसके हिसाब से टैरिफ रेट चेंज होते चले आएंगे, जरूरी नहीं कि आपका फिक्स रहे। तो उसमें आपका फ्लैट रेट भी कर सकते हैं और ब्लॉक रेट भी कर सकते हैं। पावर फैक्टर टैरिफ की यदि बात करेंगे तो ये डिफरेंशिएट होता है गुड पावर फैक्टर के बीच में और पुअर पावर फैक्टर के बीच में। क्योंकि पावर फैक्टर की बात हो रही है तो उस टाइम पे दोनों कंडीशन जनरेट हो सकती है, गुड पावर भी और पुअर पावर भी। किलोवाट आवर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ की बात करेंगे तो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द मैक्सिमम रियल पावर डिमांड, मैक्सिमम किलोवाट आवर डिमांड इज चार्ज इन एडिशन टू द चार्ज corresponding टू द एनर्जी। दूसरी यदि बात करेंगे तो किलोवाट आवर एंड द किलोवाट एम्पियर टैरिफ, तो ये दोनों जितने भी रहते हैं रिएक्टिव पावर कंजम्पशन के रूप में जाने आते हैं। स्लाइडिंग की बात करेंगे तो देयर इज सम एक्स्ट्रा चार्जेस इफ द पावर फैक्टर इज बिलो द सेट वैल्यूज, इफ द कंज्यूमर इंप्रूव द पावर फैक्टर एंड द इंसेंटिव विल बी गिवन टू द दोज कंज्यूमर। तो ये आपके टैरिफ सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से रहते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो थैंक यू, दिस इज द टुडे लेक्चर्स।